राग मलार बाणी श्री गुरु रविदास महाराज जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते साध संगत पाई परम गते साध संगत पाई परम गते मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते साध संगत पाई परम गते साध संगत पाई परम गते रहाओ। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सारियां संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव। पाठी साहिब जी ने साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दी पवित्र बाणी का शब्द क्या है? मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत थे। इस शब्द विच गुरु जी ने सब तो ज्यादा प्यारे प्राणा नूं कहा। मिलत प्यारो प्राणनाथ, प्राण सब तो प्यारे ने इन्हां दा जिहड़ा मालिक है, जो प्राणा नूं देन वाला है। अरजोई कीती, बेनती कीती है कि ऐ मेरे सवासां नूं देन वाले मेरे मालिका, तू मैनू केड़ी भगती दे नाल मिलेगा। वैसे आम ही किया जाता है कि भगती करो ते मालिक मिल जाता है, पर इत्थे गुरु जी ने भगती नूं भी प्रश्न चिन्ह च बन दिता, क्योंकि भगत बहुत किस्म दे हुंदे ने। भगती कई प्रकार दी है। भगती जो है भज शब्द तो निकली है। भज भजना, त्याउना, याद करना। ते भगत बहुत किस्म दे ने। कुछ घर दे भगत ने, कुछ देश दे भगत ने, कुछ समाज भगत हुंदे ने। गुरु जी कह रहे ने कि केड़ी भगती दे नाल, तो आम है प्रभु भगती दे नाल मालिक मिलेगा। तो प्रभु भगत भी
ਪੰਜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਹਿਤੇ ਨੇ, ਹਿਰਸੀ ਭਗਤ, ਆਰਤ ਭਗਤ, ਜਗਿਆਸੂ ਭਗਤ, ਅਰਥਾਰਥੀ ਭਗਤ, ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਹਿਰਸੀ ਭਗਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਹਿਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਪਰ ਚੰਗੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਰਸੀ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਆਰਤ ਭਗਤ। ਆਰਤ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੋ ਵੈਸੇ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਤ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਗਿਆਸੂ ਭਗਤ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਨਤੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਂਤੋ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ, ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬਹਿਨਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਬਹਿਨਾ, ਜਪ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪੇ ਹੀ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੀਪ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁਨੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਧੁਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਿਆਸੂ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਨੇ ਅਰਥਾਰਥੀ ਭਗਤ। ਅਰਥਾਰਥੀ ਭਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ
ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਸਤਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਰਥੀ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ। ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਇਹਨਾਂ ਚੌਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਸਤਸੰਗ ਚ। मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यान, तन तन गुर सतगुर पांदा, जिन हर उपदेश दे किए सियाने। है मेरे राम, असी इस तरह सा जिस तरह एक कोरा अनपढ़ बच्चा हुंदा है, जिन्हों कोई ऊड़ा ऐड़ा, कोई काखा जाए बीसी कुछ नहीं आती, पर जदों कदी वो किसी स्कूल च दाखिल हो जाता है तो किसी दिन नूं हर इल्म नूं जानन वाला हो जाता। इसी तरह असी रूहानियत पढ़ाई तो बिल्कुल कोरे सां, सानू नहीं पता प्रभु भगती की है, किस तरह करनी है। जदों सानू संतां लोकां दी संगत मिल जाती है तो उस इस सारे सवालों का जवाब सानू संतां दी संगत चों मिल जाता। इस कारण गुरु जी ने मालिक दे मिलन दा रास्ता भी साथ संगत दसिया। ये साडी पौड़ी है, पहला स्टैप है सत्संग। अगर कोई मालिक नू मिलना चाहता है तो उस सत्संग विच आना जाना शुरू कर देवे। आस्ता आस्ता ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, मैले कपरे कहाँ लो तो आवेगी नींद कहा लग सो। मैले कपरे कहा लो तो आवेगी नींद कहाँ लग सो। हुण गुरु जी दूसरा सवाल कर रहे ने, फिर तीसरा सवाल कर रहे ने। दूसरा सवाल है मैले कपड़े कहाँ ले धोवो। तीजा सवाल है आवेगी नींद कहाँ लग सो। मैले कपड़े, कपड़े जो असी पहनते हाँ आम इन्हां नूं ही समझते हैं। ते कपड़े गुरबानी दे विच तन नूं भी क्या है, कपड़ रूप सहावना सड दुनिया अंदर जावना। इस शरीर नूं भी कपड़े कहता है, पर इत्थे गुरु जी ने मन नूं कपड़े कहे। मैले कपड़े कहाँ लै धोवो। ऐ मालिका मैं इस मैले मन नूं कित्थे धोवां।
मेरे मन मैले मन दी मैल किस तरह उतरेगी। असी बहुत सारे लोग मन दी मैल नूं उतारन दे वास्ते तीर्थां ते जांदे। कोई किसे तीर्थ ते जा रहा है, कोई किसे तीर्थ ते जा रहा है, कादे लई मेरे मन दी मैल उतर जावे। मन दी मैल नूं उतारन वास्ते। पर मन दी मैल बाहरी तीर्थां ते नाउन नाल खत्म नहीं होनी। ताई गुरबाणी च कहा मन की मैल ना तन ते जात, कि मन दी मैल शरीर नूं धोण नाल खत्म नहीं होनी। विचार करना मन दी मैल किस तरह जावेगी। वैसे लोग ज्यादातर बाहर मुखी ही होए पे ने। दास कई बारी पहला भी बेनती कर चुका है ते कई बारी सतगुर कबीर जी दे जीवन इतिहास दस्या कि सतगुर कबीर महाराज जी अपने गृह विच बैठे हुए सन ते कोई संत महात्मा उन्हां दे पास आ गए। उन्होंने नवे नवे कपड़े पहने हुए ने। सतगुर कबीर जी ने पूछया तुसी बड़े नवे कपड़े पहने हुए है, समान तुहाडे पास है, किधर जा रहे? कहंदे तैनू नहीं पता कुंभ दा मेला आ गया, कुंभ दे इस्नान नू जा रहे हाँ, तेरे पास आए हाँ, तैनू भी नाल लै चलदे हाँ। मेरे पास समय नहीं है, पर यह जरूरी है कि यह मेरी लौकी लै जाना, जिथे आप इस्नान कराओगे इनू भी करवा ले आना। कहंदे ठीक है। तो कहंदे ने उन्होंने सतगुर कबीर जी तो लौकी लै ली ते तीर्थां नू चले गए। पैदल रास्ते हुंदे सन, ना जाने साल लग गया, 6 महीने लग गए। बहुत समय तो बाद वो वापस आया। जदों वापस आए जेड़े संत लोग सन ते वो कबीर महाराज जी कोल पहला आए ते उन्हां दी दित्ती हुई लौकी, क्योंकि सतगुर कबीर जी ने कहा मेरा टाइम नहीं है, मेरी लौकी लै जाओ। ते लौकियां ज्यादा मिठियां ही हुंदियां ने, पर कौड़ियां भी हुंदियां ने। वो कौड़ी लौकी सी, वो देती सी उन्होंने, पेनू भी स्नान करवा लिया ना। ते जदों स्नान करवा के वापस आए ते आके लौकी सतगुर कबीर जी नू देती। कबीर महाराज जी ने उस लौकी नू सेन चौधरों कट्टिया, सेन चौधरों कट्टिया ते उहदे गलास जन बना ले, उहदे विचों गुद्दा कढ के ते उन्हां च पानी पा के उन्हां नू पीण वास्ते दे दिता। जदों संत पानी पीन लगे तो पानी कड़वा लगा। वो कहने लगे पानी तो बहुत कड़वा है। सतगुर कबीर जी कहंदे मैं हुणे ही पीता, मिठा सी। ते महाराज जी किते फिर पानी मिठा सी ते ऐ जेड़े सानू गलास दिते ने जिन्हां च पानी पा के दिता, एक ते वो लौकी देते नहीं जेड़ी सानू दिती सी। कहंदे हाँ वही लौकी। महाराज वो लौकी ते कौड़ी सी। कहंदे मैनू भी पता है कौड़ी सी, इसे लई तुहानू दिती सी कि जिथे आप ही स्नान करोगे इन्हां भी करवा लिया ना, ताकि दी कौड़तन खत्म हो जावे, ये मिठी हो जावे। जदों सतगुर कबीर जी ने यह गल कही तो सारे हसन लग पे। तुसी हस रहे हो? कहंदे महाराज जी हासा इस गल दा आया, इतने समझदार हो ते गल किस तरह दी कर दी। सतगुर कबीर जी कहंदे किस तरह की गल कीती है? कहंदे लौकी मिठी थोड़ी होवेगी, इनू नवालिया बाहर दी मिट्टी लथ सकती है, अंदर दी कौड़तन नहीं जा सकती। तो सतगुर कबीर जी बोले कि जेकर ये लौकी नू धोण नाल तीर्थां ते
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌੜਤਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਲ ਮਲ ਧੋ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌੜਤਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦੀ ਬਾਬਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਇਆ, ਕਾਇਆ ਮਾਂਜਸ ਕਵਨ ਗੁਨਾ, ਜੋ ਘਟ ਬੀਤਰ ਹੈ ਮਲਨਾ, ਲੋਕੀ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਈ, ਕੌੜਾ ਪਨ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਈ। ਲੋਕੀ ਨੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੌੜਾਪਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਕੌੜਾਪਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌੜਾਪਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਧਵੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਹਮੇ ਔਗਨ ਤੁਮ ਪਾਰੀ ਉਪਕਾਰੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਆਖਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਲਖ ਬਖਾਰੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਦਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਲੂਈ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਦੋ ਕਿਰਪਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐ ਲੋਈਏ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਸਵਰਨ ਭਾਂਡੇ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੈਣ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਮਨ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਬਹ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੀ। ਤੋ ਵੇ ਸੁਣੀ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੋਈ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਤਾ। ਉਹ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਫੁੰਡ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ। ਐ ਸਬਕ ਕਿਹੜਾ ਪੜਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪਾਈ ਦਾ। ਐ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲੋਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟੀ, ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੂੰ ਲੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਲਖ ਬਖਾਰੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ? ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਹਾਂ ਲੈ ਧੋਵਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਸੰਗ ਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚੋਂ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਗ ਮੰਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਨ
ते सबना नू कर दान, जन्म कर्म मल उतरै, मन ते जाए गुमान, काम क्रोध ना मोहिए, बिन से लोभ सवान। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਸੰਗ ਚ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ तो ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आस्ता आस्ता अपने आप ही साडे चो खत्म हो जाएंगे, असी पवित्र हो जावांगे। सवाल है तीसरा, आवेगी नींद कहां लग सोवे। जीव तो अज्ञानता दी नींद च कितनी क देर तक सुता रहेगा। याद रख, जितनी देर तक तू अज्ञानता दी नींद च सुता रहेगा उतनी देर ही दुखी रहेगा। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सतगुरु जी ने ये अज्ञानता दी गल कहंदे हुए बड़ा सुंदर कहा सी कि नारपत एक सिंहासन सोया, सपने पिया भिखारी, असत राज बिसरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। जिस तरह कोई राजा किसी सिंहासन ते बैठा होया, अनेका नौकर चाकर उस राजा दे हुक्म दी उडीक च ने। कोई राजा नू पखा चुला रहा है, कोई राजा दे पैर दबा रहा है, राजा नू बड़ा सुख है। इस सुख च राजा दा फर्ज सी ओ जागदा भी रहिंदा, पर राजा सौ गया। जब राजा सौ जांदा है, राजे नू सुपना आउंदा है, सुपने दे विच ओ भिखारी बन जांदा है ते भिखारी बन के डोर टू डोर मंगन जांदा है ते मंगिया उन्नू कोई भी खैर नहीं पाउंदा। लोग कहते ने तू इतना तकड़ा है, तेरे कोलों कमाई नहीं जाती, तेनू मंगदे नू शर्म नहीं आ रही। वो बेचारा दुखी हुंदा, पर यह दुख उसनू कितनी देर तक है, जितनी देर तक सुता होया है। काश किते वो जाग पवे तो की देखेगा, वो भिखारी नहीं है, वो राजे दा राजा है। सोगत पई हमारी, वही हालत साडी है। असी भी अज्ञानता दी नींद विच सौंगे हुए हां ते दुख पा रहे हां। इस अज्ञानता दी नींद चो जागेगा किस तरह, आवेगी नींद कहां लग सोवे। कदों जागांगे, जदों असी सत्संग च जावांगे। सत्संग च जान करके साडी अज्ञानता खत्म हुंदी है, सानू ज्ञान मार्ग मिलदा है। इस करके गुरु जी ने तिन्ना सवालों का जवाब मालिक नू किस तरह मिलिया जांदा है, कपड़े मैले किस तरह धोते जांदे ने, कहण दा भाव कि मैला मन किस तरह धोता जाएगा ते अज्ञानता दी नींद चो किस तरह सी जागांगे। तिन्ना सवालों का जवाब गुरु जी ने सत्संग दिता। तो इस करके असी हमेशा सत्संग च आउंदे जांदे रहना। आस्ता आस्ता सत्संग दा असर साडे ते हो जाएगा। पातशाह जी ने अपनी बानी च अगे फरमाया, जोई जोई जोरियो सोही सोही पट्टियो, झूठे बनज उठ ही गई हाट्यो, जोई जोई जोरियो सोई सोई पाट्यो, झूठे बनज उठ ही गई हाट्यो। गुरु जी कहंदे ने बिना मालक दे नाम तो जोई जोई जोड़ियो सोई सोई फाटियो।
मैं जिन्हां जिन्हां नाल प्यार पाया उन्हां उन्हां नालों प्यार पाट गया। जिदे जिदे नाल भी जोड़िया, जिन्ना मर्जी वधिया साडा रिश्ता होवे, आखिर वो प्यार खत्म हो जाता है। ये नहीं है कि दुनिया च असी प्यार नहीं करना, प्यार तो बिना तो कुछ है ही नहीं। जो सानू जिम्मेवारियां मिलियां ने, जो साडे गृहस्थ दे रिश्ते ने, उन्हां नू वधिया तरीके नाल निभाना है। बेशक ये नाटक है पर वधिया रोल अदा करना है। जिथे वधिया रोल अदा करना है, पर जेकर नाटक नू सच समझोगे फिर दुखी हो जाओगे। है सच नहीं है। जदों असी इस गल नू सच समझदे हां उदों दुखी हुंदे हां। ये जोई जोई जोड़ियो सोई सोई फाटियो, मैं जिन्हां जिन्हां नाल प्यार पाया उन्हां उन्हां नालों प्यार पाट गया। ये आत्मा कहंदी मैं देखिया। कदों? जदों टाइम समा हुंदा है ते ये आत्मा सारा कुछ देखदी हुंदी है। सानू नहीं वो दिसदा, लेकिन वो सानू सारा कुछ देखदी है। वो आत्मा नू सारा कुछ लभ रहा, जो कुछ हो रहा हुंदा है, जिस तरह असी कर रहे हुंदे हां, ते वो आत्मा की देखदी है जिन्हां नाल मेरा इन्ना प्यार रहा है, प्रेम रहा है, ये की कर रहे ने। उच्चे मंदिर साल रसोई नहीं रखिया, फिर की हुंदा है? ये भैन भरा रिश्तेदार कट्ठे होए ते ओ भरा जेड़े नानू बड़ा प्यार करदा सी, उन्हें ही मोढियां ते चुक्किया शमशान घाट नू लै गए। वो रिश्तेदार भैन भरा उन्होंने इहदी मड़ी चिनी, अजे के बड़ी वड्डी गाल तेरी मड़ी चिनी, किते बड़ियां बीबियां कई बारी गाल कड्डदियां ते चिनी किन्नी अपनिया नहीं हुंदी। उहदे बाद च इहनूं लांबू लाण दा टाइम आया ते किन लाया? प्यारे पुत्र ने लाया। हालांकि ये भी बड़ी वड्डी गाल, बड़े अक के मावां कहंदियां ही बुढ़ियां बजुर्ग मतावां, तैनूं लांबू लाया इहो जे नूं, ते किन लाया? अपनिया ने। ये जोई जोए जोड़ियो सोई सोई फाटियो। कहंदे जी मैं वेख लिया, जिन्हां जिन्हां नाल प्यार पाया उन्हां उन्हां नालों प्यार पाट गए। किसी ने मेरा साथ नहीं दिता। बिना मालक तो चूठे वंज उठ ही गई हाटी। झूठा वंज विच पै के ये हट्टी, ये जिहड़े जिहड़े साडे सवास ने, ये सारे खत्म हो गए झूठे वंजां च पै के। जिन्ने भी है कारज असी कर रहे हां झूठ दे ही ने, इन्हां च ही साडी जिंदगी खत्म हो गई। होर ते होर मैं देखिया एक पिंड मिर्जेपुर है, रोज ही असी कदी कदी उत्थे जांदे हां, ते जदों भी जाना जिथे असी गड्डी खिलारदे, एक बोर्ड जे दा दरखत, ओदे थल्ले 15-20 लोग बैठे होने। एक दिन उत्थे नहीं सन बैठे, मैं ड्राइवर नूं कहा गलत जगह ते नहीं आ गए, मैनू उपरा उपरा जगह लगे। एक कहंदा है ते ओही इन्हां नूं पता किते लग गया बाबा जी आ रहे हैं, वो पहला ही उठ पे। तो मैं उन्होंने कहा एक दिन, वैसे तो उन्होंने याद आ गई कि तुसी इत्थे टाइम जी वेस्ट करते हो, इन्ना कीमती समा है, तुसी तास ही सारा दिन खेडते रहंदे हो। एक घर बच्चों नूं दवो टाइम, परिवार नूं टाइम दवो, प्यार वधे, उन्होंने सिक्ख्यावां देवो, उन्होंने कुछ गलबात सुनाओ, बच्चों नूं हैल्प हो जाएगी, नाल उन्हां दे माता पिता दी। तुसी ये किहड़े काम च पै गए होए? कहण दा भाव इसी तरह दी कम्मां च असी अपनी जिंदगी नूं खराब कर दिता, बर्बाद करता। ते ये जिहड़ी जिंदगी है, ये जिहड़ी सानू रास मिली हुई सवास बड़े कीमती ने, नहीं इन्हां नूं वे अर्थ नहीं जानदे। सतगुरां ने कहा है कि कहता हूं कह जात हूं, काहूं बजावत डोल,
ये सवासा बिरथा जात है तीन लोक का मुल। ये सवासां दा मुल बहुत मुल है, इन्हां नूं व्यर्थ नहीं जानदे ना। की करना है कबीरा सोया क्या करे, जागन की कर चोप, ए दम हीरा लाल है गिन गिन गुर को सौंप है। ऐ इंसान सुता पिया की कर रहा जाग, ऐ जो तेरे सवास ने हीरे जवाहरातां दी तरह ने एक एक गिन के सतगुरां नूं दे। सतगुरु नूं देण दा भाव हर सवास दे नाल गुरु महाराज दा भजन कर, ताकि कल नूं धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लैके जाएगा। कल नूं धर्मराज लेखा पुछे ते केड़ा लैके जाएगा। इस करके ਜਿਹੜੀ उम्र चले गई ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ है इनू जीव लेखे चला लै, ये किते एवें हट्टी बर्बाद ना कर दी। पातशाह जी ने फिर अपनी बानी च अगे फरमाया, कहो रविदास पयो जब लेखो, जोई जोई किनो सोई सोई देखियो। कहो रविदास पयो जब लेखो, जोई जोई किनो सोई सोई देखियो। सारा शब्द कहन तो बाद गुरु जी कहते ने, कहो रविदास प्यो जब लेखो, जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो। सतगुरु जी कहते ने जदों इसे इंसान दे कर्मां दा जो लेखा जोखा हुंदा तो जिहो जिहो जे कर्म करदा है ओहो जिहा फल पा लैंदा। जे चंगे कर्म करदा है तो चंगा फल मिल जांदा है, माड़े कर्म करदा है तो माड़ा फल मिलदा है। जा बीजे सो लूने मत्थे सो लखे आस, जिहो जिहा बीज बीजिया ओहो जिहा उगना। चंगे कर्मां नाल सुख होण पैदा, मंदे कर्मां नाल सदा दुख हुंदे। दुख डिगदे नहीं असमान उत्तों, कारण दुख दा खुद मनुख हुंदे। चंगे जिहड़े कर्म करदे ने सुख भोगदे ने, जिहड़े माड़े कर्म करदे ने दुख भोगदे ने। असी चंगे कर्मां नूं करना है, वधिया कर्म करने ने जिन्हां नाल जीवन आनंदमय हो जाए, जिहदे नाल साडा जीवन सुखदाई हो जाए। वो कर्म नहीं करने जिन्हां करके साडा जीवन दुखी हो जाए। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, मैनू याद है दोने ही जी अफसर सन, क्लास 1 अफसर। अज तो 4 साल की गल है, पठानकोट दे ही ने। ते मेरे कोल सुबह सुबह एक दिन आ गए, कहने लगे महाराज जी किरपा करो, बख्शस करो। मैं क्या की? दोने क्लास 1 अफसर हो, बच्चे वधिया, तुहाडे वधिया परिवार है। कहने लगे तो है तो सारा कुछ वधिया, पर साडे दोनों जियां दी लड़ाई खत्म नहीं हुंदी। मैं क्या लड़ाई खत्म नहीं हुंदी? कहंदे हाँ, पता नहीं किसी ने साडे घर च लड़ाई पाती दी है। किसी ने पाती? कहंदे हाँ, जदों मैं वेख्या ये बड़े वहमां च पे हुए ने, किसे ते लड़ाई किसी ने पाती। मैं क्या तुहानू एक मंत्र मैं देवांगा, तुसीं याद रख लोगे? कहंदे हाँ। मैं बड़ा सौखा जिहा मंत्र है, एक नू गुस्सा आ जाए तो दूजे ने गुस्से च नहीं आना। कहंदे हैं मैं बस ऐ ही मंत्र है, कदी बाई दी वे एक नू गुस्सा आ भी जाए तो दूजे ने गुस्से च नहीं आना, तुहाडी लड़ाई आपे ही खत्म हो जाएगी। ये जितने दुख ने साडे अपने कर्मां दे ने, कुदरती दुख पैंदे ने बहुत घट। किते सुनामी लहरां आ गईयां, किते जवार पाटा पाट गया,
चाहे कुदरती कोई बीमारी लग गई, घर च लड़ाई पा लेनी, नशे च मन नूं लगा लेना, ये साडे अपने बनाए हुए दुख ने। तो कोशिश करनी है एहो जिहा बीज बीजिए जेड़ा सानू दुख ना देवे, ओही बीज बीजिए जिदे नाल साडा जीवन सुखी होए, आनंदमई हो जाए। है साडे हत्थां च ही है, जो भी कर्म ने तुहाडे अपने हथ वस च है। तुहानू रब ने अपने वर्गा बनाया। बेशक इंसान जिहड़ा कई कह दिंदे ने रब नहीं हो सकता, पर जे मन ली उन्हां दी गल नहीं रब हो सकता, पर रब जैसा तो है ना। सानू मालिक ने इतनी वड्डी सोच दिती है, इतनी वड्डी बुद्धि दिती है भी तू सोच तो कम लै। वो कर्म करने ने जेड़े साडे सुख दा कारण बन, वो कर्म नहीं करने जेड़े दुख दा कारण बन। नशे करने, जुआ खेडना, क्रोध च आ जाना, नफरत करनी, निंदिया चुगलियां आदि दा त्याग कर दे, ते फिर की होएगा? फिर तुसी वधिया फल पाओगे, मोक्ष फल मिलेगा, तुहानू आनंद दा फल मिलेगा। तो जेकर पाना तो सानू आनंद वाला बीज बीजना भी पवेगा। सो आओ गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सतगुरु जी दे कहन दा भाव है कि ऐ इंसान तू एहो जे कर्म कर लै जिदे नाल तेरा जीवन आनंदमय हो जाए। वो कर्म नहीं करने जिदे करके तेरा जीवन दुखी होए। है तो मामूली जी गल है, छोटी जी गल, छोटा जिहा त्याग करना पेगा सानू हंकार तो, छोटा जिहा त्याग करना पेगा सानू क्रोध तो, नशियां तो, जबान तो, और मन ते थोड़ा जिहा कंट्रोल करना पेवेगा। बस इतनी कहानी है, फिर साडा जीवन भी लेखे च, जीवन भी आनंदमय, और असी कदे भी दुखी नहीं होवांगे। यही गुरु जी दा सानू ज्ञान है। सारियां संगतां नू दस वल्लों जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। रविदास जी। गुरु प्यारे साध संगियो, करो रसना नू पवित्र, कोई भी रसना वांझी न रह जावे। पढ़ो गुरु जी दी आरती। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो लेस टेका, हरे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अंबला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अंबला, नाम तेरो चंदनो। बस जपे नाम ले तुझको चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा देवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा देवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो की जोत लगा
ਉਜਿਆਰ ਪਵਨ ਸਗਲਾ ਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਪਾਰੇ 18 ਸਗਲ ਜੋਠਾ ਅਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪਿਓ ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੋ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਚਵਰ ਡੋਲਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ 10 8 60 ਚਾਰੇ ਖਾਨੀ 10 8 60 ਚਾਰੇ ਖਾਨੀ ਹੈ ਵਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਵਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਕਹਿ ਰਵਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਸਤ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਰੇ ਭੋਗ ਤੋਹਾ ਅਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੇ ਮਜਨ ਮੋਰਾ ਅਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਅਰਦਾਸ। रवदास नाम का जगत में चंडा गड़ाय पार पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया पार। रवदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा उपदेश लिया जिस गुरु से हिरदा दम करहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल प्राप्त उनको है सही सतगुर जिन पर दयाल। श्वास जाए परवाह न करूं पुण्य पुण्य लायो वाक। भगत जान बैराग की तरो अपना हाथ। विनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा कीजिए उदास ते करो बुद्ध प्रकाश। सुहांग नाम जहाज है चढ़ी सुतरी पार। जो श्रद्धा कर सेव दे सतगुरु पारे उतारनार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तार निहार। चिता चिमारी सी बाल्मीक जी नाम देव कुल तार।
ਨਾਮ ਦੇਵ ਕੁਲ ਤਾਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਤਾਰਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੈਨ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨ ਕੇ ਸੰਪੋਖ ऋषि बलवीर रैंका बैंका पीलनी भगत बठार निहास लोलंगर चलते रहे करो काम को रास जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण श्लोक हर सोहीरा साड़ के करहे आन की आस तीनर दो जग जाएंगे सत पाखे रवदास ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न सोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे परस जो बोले सो नर पै स्वामी जगत गिर महाराज की जय स्वामी गुरुदेव गिर महाराज की जय सब साध संतन की जय जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास।